جنت میں جانے کی جو شرط ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں وہ بیان کیا گیا تھا کہ ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا یہ جنت میں جانے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے صحیح اور سچے ہونے کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا، اسی کا نام ایمان ہے، جو دلائل کی روشنی میں بیان کیا گیا تھا۔ ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور جب اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جائے یا اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار ہو تو ایسے حالات میں ایک انسان کے دل کے اندر کپ کپی اور ڈر پیدا ہو جائے، اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے، اور اس دنیا کے اندر وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس پہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھے، پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ یہی سچے مومن ہے، یہ مومنوں کی پہچان ہے، اس کی صفات ہے، اس کی نشانیاں ہیں۔ آج کے اس جمعہ میں مومنین کے چند اور اوصاف، مومن کی اور کچھ خصوصیات اور اس کی کچھ اور صفات آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی انشاءاللہ، اس امید سے کہ واقعی اگر آپ مومن ہیں اور مومن بننا چاہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جو پہچان بیان کی ہے، مومن کی جو صفات بیان کی ہے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تو اس میں ہم روزہ رکھیں گے، اس کے لیے بھی پہلی شرط رکھی گئی ہے ایمان کی۔ 3 روایت کا میں شارٹ میں بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صام، ایک میں ہے من قام رمضان، ایک میں ہے من قام لیلۃ القدر۔ یہ تینوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط رکھی ہے وہ ہے ایمانا و احتسابا، یعنی جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا یا رمضان المبارک میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، یا تو شب قدر میں انہوں نے قیام اللیل کیا، شب قدر میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کی، کس شرط کے ساتھ؟ ایمانن، ایمان کے حالت میں، و احتساباً، اور نیکی اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العالمین ان کے پچھلے سارے گناہ بخش دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب جو رمضان مبارک کا روزہ بھی آنے والا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ہے۔ ایمان جب تازہ ہوگا، ایمان کی حالت میں جب ہم ہوں گے، اور اس کے بعد ثواب کی نیت سے، اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے جو شرائط بیان کیے ہیں، ان تمام شرائط کو، ان تمام شروط کو پورا کریں گے، تب جا کر کے ہمارا روزہ قابل قبول ہوگا۔ تو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے جو انسان رمضان کا روزہ رکھے گا یا تراویح کی نماز پڑھے گا یا شب قدر میں قیام اللیل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اسی لیے ایمان بہت ہی ضروری ہے۔ آئیے ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں، تو مومن کے ہم بعض صفات آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ چونکہ ہم انسان ہیں اور انسان سے یہ خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو غلطی پہ غلطی کرتے جانا یہ شیطان کا کام ہے، اور غلطی ہونے کے بعد اس کا احساس کرنا اور توبہ استغفار کرنا یہ مومن کی پہچان ہے، اس کی صفت ہے، اس کی نشانی ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ جب ابلیس سے نافرمانی ہو گئی، اللہ نے کہا میں نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنے عقل و دماغ کو لگایا اور خود کو صحیح قرار دینے کی کوشش کیا۔ یہ ابلیس کی، یہ شیطان کی صفت ہے۔ آدم علیہ السلام بھی شیطان کے بہکانے سے جنت کے درخت کا پھل کھا لیے تھے، ان سے بھی غلطی ہو گئی۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کو آواز لگائی اور کہا تو نے بھی غلطی کر لی، تو فوراً ان دونوں نے احساس کیا، اور آدم و حوا نے اپنے دونوں ہاتھ دربار الہی میں اٹھا دیا اور توبہ استغفار کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
तो मोमिन की पहचान तौबा इस्तिगफार करना है गुनाह करने के बाद, और शैतान की सिफत अकड़ के रहना है। अफसोस की बात है, आज हम मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है जो दिन रात गुनाह का काम करते रहते हैं। किताब और सुन्नत के रोशनी में जब उसकी इस्लाह करने की कोशिश की जाती है तो बजाय इसके कि उस गुनाह को गुनाह समझे और अपनी इस्लाह करे, उल्टे वो अकड़ते हैं और किस्म के दलाइल देने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सच और सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इब्लीस ने खुद को सच और सही साबित करने की कोशिश किया था। और आदम अलैहिस्सलाम के जैसे वो तौबा इस्तिगफार नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, सूरत तौबा सूरह नंबर 9, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम इलाही के अंदर, कुरान मजीद के अंदर जो 114 सूरतें नाजिल की हैं, उनमें से 9 नंबर के सूरे का नाम क्या है? सूरत तौबा है। सूरत तौबा की आयत नंबर 112 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनीन के कुछ सिफात बयान फरमा रहे हैं। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल-मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल-हाफिदून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। तौबा करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना और तारीफ और तौसीफ बयान करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के खातिर सियाहत करने वाले, सफर करने वाले और रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, लोगों को बुराई से रोकने वाले, नेकी के काम का हुक्म करने वाले और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुदूद की हिफाजत करने वाले, ये मोमिन की सिफात हैं। अल्लाह ने बयान फरमाया जिनके अंदर ये सिफात होगी, वह बश्शिरिल मोमिनीन, ऐसे मोमिनों को आप खुशखबरी सुना दीजिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, यकीनन शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। हमारे माँ बाप जन्नत के अंदर पैदा किए गए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको तालीम दी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनको तरबियत मिली थी, फरिश्तों के साथ उठना बैठना था, लेकिन शैतान इतना बड़ा मरदूद है और शैतान इतना खबीस है कि ऐसे इंसान को भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान बना के छोड़ा और जन्नत में ये चीज जन्नत से निकलने का सबब बना। तो हमारी और आपकी हकीकत क्या है, हमारी और आपकी हैसियत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान इंसान के ये रगों के साथ वो बहते रहता है, रगों में जो खून बहता है इसके साथ शैतान बहते रहता है और इस तरीके से ये बहते बहते अल्लाह ने वो ताकत दी उसको, वो दिल के अंदर आता है, दिमाग के अंदर आता है और हमें गलत ख्यालात, हमारे दिलो दिमाग में गलत वसवसे और गलत ख्यालात डालता है और इस तरीके से हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान बना देता है। तो ऐसी सूरत में आदम और हव्वा की औलाद की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अपने हाथ को उठा दे और तौबा इस्तिगफार करे। ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, ऐ अल्लाह हम तेरी बंदी हैं, मौला करीम फला चीज करने से तूने मना फरमाया था, शैतान के वसवसे में आकर के मुझसे वो काम सरजद हो गई, मौला करीम मैं तौबा करता हूँ, मैं इस्तिगफार करता हूँ, तो मेरे गलतियों को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को बख्शे दे। इस तरीके से हर मोमिन की ये सिफात होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हम करते हैं? हम गुनाह करते हैं, गुनाह पे डटे हुए रहते हैं, गुनाह पे अड़े हुए रहते हैं, गुनाह पे बधित रहते हैं, गुनाह से जब रोका जाता है उस वक्त ऐसे ही लोगों से उलझ जाते हैं, कहते हैं तू तो बड़ा, हर मोमिन की ये सिफात होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हम करते हैं? हम गुनाह करते हैं, गुनाह पे डटे हुए रहते हैं, गुनाह पे अड़े हुए रहते हैं, गुनाह पे बधित रहते हैं, गुनाह से जब रोका जाता है उस वक्त ऐसे ही लोगों से उलझ जाते हैं, कहते हैं तू तो बड़ा पारसा निकलता है, जाओ खुद अल्लाह वाले बनो, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब दे देंगे। कभी कुछ लोग ऐसे बहाने बनाते हैं, कहते हैं अल्लाह
अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ कर देगा, हमारे गुनाह को बख्श देगा। मेरे भाइयों और बहनों, जिनके दिमाग में इस किस्म की बातें चल रही हैं वो गौर से सुन ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक जगह नहीं बल्कि कई एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है कि अल्लाह गफूर रहीम किन लोगों के वास्ते है, अल्लाह किन के गुनाह को बख्शता है, अल्लाह किन के ऊपर रहम करम का मामला करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, जो इंसान जहालत और नादानी की वजह से, ला इल्मी की वजह से कोई गुनाह का काम करता है, फिर जैसे ही उसको उसका इल्म हो जाता है तो फौरन वो तौबा इस्तिगफार कर लेता है और अपने आमाल की इस्लाह कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के वास्ते गफूर रहीम है कि उनके गुनाहों को भी बख्शेगा और उनके ऊपर रहमो करम का भी मामला करेगा। तो अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है, इस किस्म के धोखे में मत रहिए। अल्लाह ऐसे बख्शता नहीं है, अल्लाह ऐसे रहम नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया है, जिनको इल्म है, जानकारी है, वो अपने इल्म के मुताबिक सही तरीके से अमल करने की कोशिश करते रहे, गुनाहों से बचते रहे। फिर भी अगर गलतियां हो गई, फिर भी अगर गुनाह के अंदर पड़ गए तो फौरन पलट आइए, फौरन रुजू हो जाइए अल्लाह की तरफ और अल्लाह के दरबार में हाथ उठा दीजिए और तौबा इस्तिगफार कीजिए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्शेगा, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर रहम व करम का मामला करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन की एक सिफत इस आयत करीमा के अंदर यह बयान फरमाई कि मोमिन तौबा करने वाले होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हम गुजारिश करते हैं कि रमजान मुबारक का बाबरकत महीना भी आ रहा है। अब तो कम से कम अपने हालात को सुधार लीजिए, अपने हालात की इस्लाह कर लीजिए, नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर्वसुजूद हो जाइए। रमजान के आने से पहले पूरी तरीके से आप ताइब होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन का हो जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बन जाइए। और रमजान में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन चीजों को पहले से ही हासिल करने की कोशिश कीजिए, उन चीजों को पहले से ही खरीदने की कोशिश कीजिए, रमजान का इस्तेकबाल कीजिए। मेहमान के आने से पहले सारे चीज का इंतजाम किया जाता है। मेहमान को घर में बिठा करके दूसरे चीज इनके जियाफत के सामान खरीदने के लिए लोग नहीं जाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मेहमान आने वाला है, उनके आने से पहले आप खरीदो फरोख्त कर लीजिए, कपड़े लत्ते खरीद लीजिए, दूसरे चीजें भी हासिल कर लीजिए। अब जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, वक्तन फौक्तन आते रहता है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहते, उनका मामला अलग है। लेकिन जिनके पास मौजूद है वो इस फिक्र में न रहे, रमजान आएगा, ईद आएगी, तब जाकर के हम कपड़े लत्ते करेंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसे हालात में इबादत वगैरह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। रमजान मुबारक का महीना ये इबादत का मौसम बहार बनकर के आ रहा है, उसको इबादत के लिए लगाइए और उससे पहले सारा साजो सामान जिनके पास है वो मुहैया कर ले, उसको हासिल कर ले। बहरहाल हमें और आपको तौबा इस्तिगफार करने का है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी सिफात इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाई, वल आबिदून, इबादत करने वाले हैं। यानी हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सदका तो खैरात करते हैं, तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने का है। ये मोमिन की पहचान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आबिदून यानी इबादत करने वाले सिफात के बाद बयान फरमाया हामिदून, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना बयान करने वाले हैं। मोमिन क्या करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना बयान करते हैं। सुबह से लेकर अब तक आप लोग कितने मर्तबा पानी पिए होंगे? चाय भी पिए हैं, पानी भी पिए हैं, दूसरे और पीने की चीजें पिए होंगे। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द आपने बयान की? पानी पीने के बाद, चाय पीने के बाद, शरबत पीने के बाद, जूस पीने के बाद, दूध के अलावा जो हलाल चीजें पीने का है वो पीने के बाद एक इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के लिए कहा गया है, अल्लाह की हम्द और अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए कहा गया है। ऐसे मुसलमान इस मस्जिद के अंदर होंगे जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़े हैं। कैसे मोमिन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए,
क्या आप लोग छींके नहीं हैं? छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का है। क्या आप लोग खाना नहीं खाए? खाना ही नहीं। कोई भी चीज है खाने की, वो खाने के बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है और उसमें भी क्या है? हम्द है, अल्लाह की तारीफ है। मैं इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूं क्योंकि अब सिर्फ वक्त 5 मिनट बचा हुआ है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना हर मोमिन मर्द और औरत के लिए जरूरी है कि चलते फिरते अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान करे। और उसके बाद अस्साइहून का जिक्र किया है। साइहून का जो अरबी में लुगत में जो माना होता है वो है सियाहत करने के, सफर करने के, सैर व तफरीह करने के। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइहून का माना रोजा भी कहा है। तो बाद लोग कहते हैं क्या साइहून से मुराद क्या है? रोजा रखने वाले, यानी मोमिन रोजा रखते हैं। और बाद मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि इसका जो असल माना है सियाहत, सैर व तफरीह और सफर वगैरह, वो उससे मुराद है। तो सैर व सपाहट से मुराद ऐसे ही सैर सपाटे करना नहीं, पिकनिक में जाना नहीं, इधर उधर के मटर गश्ती करना नहीं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के खातिर आपको सफर करने के लिए कहा गया है। मोमिन की पहचान है कि वो अल्लाह के दीन के खातिर क्या करे? सैर व सपाटे करे, दावत और तबलीग के वास्ते जाए, लोगों को समझाने के वास्ते निकले, कहीं दीनी प्रोग्राम हो रहा तो दीनी प्रोग्राम में जाए, सुन करके अमल करने की नियत से, भीड़ इकट्ठा करने नहीं, जलसे जुलूस को मेला बनाने के लिए नहीं, बेहयाई और बुराई को फरोग देने के लिए नहीं, वहां पे मजे लेने के लिए नहीं, ये दीनी उमूर के लिए, दीनी काम के लिए सैर व सपाटे कौन करते हैं? मोमिन करते हैं। सब क्या है? वो अल्लाह के दीन के फरोग के खातिर, अल्लाह के दीन की नश्र व इशाअत के खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तरवीज के खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की सरबुलंदी के खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए तालीम हासिल करने के खातिर जो लोग सैर करते हैं, ऐसे लोग मोमिन है। ये मोमिन की पहचान है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया मोमिन की पहचान अर्राकिऊन वस्साजिदून, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, यानी नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर्वसुजूद होने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बातों के सामने अपने आप को झुका देने वाले, ये मोमिन की पहचान है। मोमिन मर्द के भी और मोमिना औरत की भी। तो हमें और आपको चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह के लिए रुकू करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सजदा करें। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन की पहचान बयान कर दी कि ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रुकू और सजदा करने के लिए कहा गया है, तो जाहिर सी बात है गैरुल्लाह के सामने, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वली और पीर और फकीर के क्या कहते हैं कि वो कब्र हो, मजार हो, कहीं पे भी रुकू करना, सजदा करना, अपने सर को झुकाना, यकीनन ये उनकी इबादत है। और अल्लाह के साथ अगर गैरुल्लाह की इबादत की जाए तो ये शिर्क हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क करने वाले को कभी बख्शता नहीं है। जन्नत उसके लिए हराम हो गई है और जहन्नम को हलाल करा दिया गया। जहन्नम में इसे शिर्क करने वाले दाखिल होंगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया और आमिरून बिल मारूफ, जो मोमिन होते हैं, मोमिन की पहचान है कि वो लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं, भलाई की तरफ बुलाते हैं, वन्नाहून अनिल मुनकर, और मुनकरात से, नापसंदीदा चीजों से, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों से रोकते हैं। आज हम और आप दिन रात देखते रहते हैं और अक्सर मैं कहा भी करता हूं, लेकिन फिर भी कान में जूं तक नहीं रेंगती है। बुराई करने वाले बुराई कर रहे हैं, गलत काम करने वाले गलत काम कर रहे हैं, हमें क्या पड़ी हुई है? अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमें क्या पड़ी हुई है, तो कल क़यामत के दिन पड़ेगी आपके ऊपर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दुर्रे पड़ेंगे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बयान फरमाया है कि लोगों के ऊपर जो अजाब आता है उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि लोगों को नेकी की तरफ ये लोग बुलाते नहीं हैं और बुराई से नहीं रोक रहे हैं। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आ जाता है। तो मेरे भाइयों, मोमिन अगर वाकई हैं और मोमिन बनना चाहते हैं तो फिर हमारी और आपकी हर एक की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा की जो आखिरी सिफत बयान फरमाई है, वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हदों की हिफाजत करने वाले हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने हमें जो भी काम करने का हुक्म दिया है उनमें से हर एक का एक हद मुतय्यन कर दिया है कि तुमको इसी हुदूद में रह करके करने का है। अपनी मर्जी से न हम नमाज पढ़ सकते, न रोजा रख सकते, न हज कर सकते, न सदका व खैरात कर सकते, न कुरान की तिलावत कर सकते, न तस्बीह व तहलील कर सकते, न दूसरे किस्म की चीजें कर सकते हैं। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुदूद बयान किए हैं उस तरीके से अगर हम करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारे नेकियों को बयान करने के बाद आखिर में बयान फरमाया कि मोमिन अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 सहाबी आए, मुख्तसरन बयान करता हूं, 12 बयान किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से, उनको बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इबादत करते हैं। एक ने कसम खाई कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ हैं, फिर भी इतनी बात करते हैं, हम लोग तो गुनाहगार हैं। कसम अल्लाह की, मैं रात भर इबादत करूंगा, रात को कभी नहीं सोऊंगा। तो इबादत के वास्ते इसने कसम खाई, रात भर इबादत करने की। दूसरे ने कहा मैं डेली रोजा रखूंगा, दिन को कभी भी नहीं खाऊंगा। इबादत करने के वास्ते रोजा रखने की इसने कसम खाई। तीसरे ने कहा मैं शादी ब्याही नहीं करूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहूंगा। तो शादी करेंगे तो बीवी, फिर बीवी के बाद बच्चे आएंगे, उनके हुकूक पूरा करते करते अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और इबादत में खलल पड़ेगा, तो मैं पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में ही लगाना चाहता हूं। ये तीनों कसम खा के गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातें बताई गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन करके गुस्से के मारे आपका चेहरा लाल हो गया। तीनों को बुलाया गया और कहा क्या तुम लोगों को मुझसे ज्यादा इल्म है? जिसके पास जितना ज्यादा इल्म रहेगा वो उतना ही अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं तो इतना ही अमल कर रहा हूं और तुम लोग मुझसे ज्यादा अमल करना चाहते हो, तो मुझसे ज्यादा इल्म है तुम्हारे पास। फिर कहा क्या तुम्हारे अंदर मुझसे ज्यादा तकवा है? मुझसे ज्यादा तकवा और परहेजगारी तुम्हारे अंदर है? मेरे तो ये अमाल है और तुम मुझसे ज्यादा इबादत करना चाहते हो, मुझसे ज्यादा अमल करना चाहते हो, तो क्या मुझसे ज्यादा तकवा और परहेजगारी हो गई? मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले बन गए? और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मैं रात को अपने जिस्म का भी हक अदा करता हूं और अपने रब का भी हक अदा करता हूं। रात को सोता भी हूं, जिस्म को आराम भी पहुंचाता हूं और थोड़ी देर उठ करके रब की इबादत भी करता हूं। तो इबादत के लिए देखिए एक हद बयान कर दिया गया। तहज्जुद की नमाज के वास्ते हद मुकर्रर किया गया, इस हद से तजावुज करने वाले सहाबी को रोक दिया गया। दूसरे से कहा मैं दिन को खाता पीता भी हूं और रोजा भी रखता हूं, यह हद है। रोजा रखने की हद मुकर्रर कर दिया गया। सिर्फ रोजा ही नहीं, इबादत करने के वास्ते सिर्फ तुम्हें पैदा नहीं किया गया, इबादत सिर्फ करने के लिए फरिश्ते मौजूद हैं। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त उन्होंने कहा था हम तेरी तस्बीह और तकदीस बयान करते हैं तेरी हम्द व सना के साथ। मौला करीम तो इन लोगों को क्यों पैदा करना चाहता है? अल्लाह ने सिर्फ अल्लाह की हक अदा करने के लिए इंसानों को पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हक के साथ साथ अल्लाह ने इंसानों के ऊपर बहुत सारे हुकूक रखे हैं। तीसरे से कहा कि देखो मैं शादी ब्याह करता हूं, मेरे बीवी बच्चे भी है, तो आखिर में कहा ये मेरी सुन्नत है और कहा फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो हमारे तरीके पे नहीं है। मालूम हुआ, समझ में बात आ रही है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक अमाल करने के लिए भी जो हद बयान किए हैं उन हुदूद में रह करके भी ही एक मोमिन अमल करता है। तो इसीलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने अक्ल और दिमाग को किसी मामले में ना लगाएं। बहुत सारे लोग जैसे कि बरेलवी वगैरह हैं तो ना जाने क्या कुरान खानी करते हैं, आयते करीमा करते हैं, फातिहा करते हैं और बहुत सारे दिगर किस्म के बिदात और खुराफात करते हैं। और जब उनको समझाया जाता है, कहा जाता है ये सहाबा इकराम का तरीका नहीं है, ये सुन्नत तरीका नहीं है, तो कहते हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ना गलत हो गया। हम सूरा फातिहा पढ़ते तो सूरा फातिहा पढ़ना गलत हो गया। तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हद बयान फरमाया है उसके मुताबिक हमको अमल करने का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया है कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई ऐसा काम किया जिसके बारे में हमने हुक्म दिया नहीं है तो वो मरदूद है।
इसका हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है, ये मरदूद है। अभी शबे बारात भी चल गया, उससे पहले शबे मेराज चला गया, फिर अभी रमजान के बाद भी आएंगे, मुहर्रम आएगा, रबीउल अव्वल आएगा। उन महीनों के अंदर खुराफात कहा जाता है और ये अल्लाह के हुदूद से तजावुज कर जाते हैं। जो काम करने का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया है, उनसे आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, वक्त ज्यादा हो गया है, बातें तकरीबन समझ में आ गई होगी। अभी तो सिर्फ एक ही आयत की तफसीर बयान करते करते वक्त खत्म हो गया। इंशाअल्लाह अजीज दिगर जुमों में और मोमिनों के कुछ सिफात आप हजरात के सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि मौला करीम अब तक मोमिन की जो सिफात बयान की गई हैं, यानी हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करना, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाए तो अपने अंदर डर और खौफ पैदा करना, और इसी तरीके से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें पढ़ करके सुनाई जाएं तो उसमें अपने ईमान के अंदर इजाफा कर लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा करना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, गलतियां हो जा रही है तो वहां पे तौबा इस्तिगफार करना, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम किस्म की इबादत करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द व सना बयान करना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तरवीज के वास्ते सैर करना, रोजा रखना, रुकू करना, सजदा करना, लोगों को भलाई का हुक्म देना, मुनकरात से रोकना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरीके से इन तमाम चीजों को करने का हुक्म दिया है, इन सारे चीजों को उसी तरीके से करना, अल्लाह के हुदूद से तजावुज न करना, बल्कि अल्लाह उसके रसूल के बनाई हुई हुदूद में रह करके हर किस्म के आमाल करना। रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि मौला करीम सबसे पहले कहने वाले को बाद तमाम सुनने वाले मर्द और खवातीन को इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।